چلو زارا آپ بھی جاؤ، 7 بج گئے ہیں، ہمیں حیدرآباد پہنچتے پہنچتے بھی رات ہو جائے گی۔ اوہو سائم رکے تو ذرا امی جی سے دعائیں تو لے لوں۔ زارا نے ساس کے گلے لگتے ہوئے کہا، جیتی رہو ہمیشہ، خوش آباد رہو۔ آمین کہنے سے پہلے ہی سائم نے آ کر زارا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، چلے امی ابھی اجازت دیں، پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ بیٹا تم بات تو کرتے تبادلے کی، شاید کوئی حل نکل آتا۔ عفت جہاں نے آپ دیدہ ہو کر کہا، کوئی بات نہیں امی، وہاں بھی تو انسان ہی بستے ہیں۔ آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے ہم حیدرآباد نہیں، بھوتوں کے ڈیرے میں جا رہے ہیں۔ سائم کی بات سن کر زارا نے سائم کو کہا، جناب آپ کی فکر نہیں، امی جی کو میری اور ہمارے آنے والے بچے کی فکر ہے۔ ہاں ویری فنی، امی کو پہلے میری فکر ہے محترمہ، امی کا اکلوتا چشم و چراغ جو ہوں۔ ہاں بھائی تم دونوں کی فکر ہے، لڑو نہیں، اور تم دونوں سے زیادہ مجھے اپنے پوتا پوتی کی فکر ہے۔ اب خیر سے جاؤ، پہنچ کر فون ضرور کرنا، مجھے فکر رہے گی۔ اچھا امی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ زارا اور سائم دونوں نے گاڑی میں بیٹھ کر ہاتھ کے اشارے سے اللہ حافظ کیا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سائم کریم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور زارا اس کی محبت، اس کی بیوی، جو امید سے تھی اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی کہ سائم کے ڈی سی آفس حیدرآباد میں تبادلے کا نوٹیفیکیشن آ گیا اور زارا کی حالت دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے امی نے اس کو ساتھ لے جانے کی اجازت دی تھی۔ اب دونوں باتیں کرتے محض سفر ہیں اور گاڑی سپر ہائی وے پر فراٹے بڑھتی چل رہی ہے۔ زارا تو کافی دیر پہلے ہی سو گئی تھی، طبیعت بھی عجیب تھی اس کی، چلتی گاڑی میں بھی نیند پوری کر رہی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے دوبارہ گاڑی روک کر تھوڑا ریسٹ کیا تھا سڑک کے ڈھابے پر۔ کھانا کھا کر رات 12 بجے پھر سے سفر کا آغاز کیا۔ گاڑی تقریباً 5 کلومیٹر دور ہوگی حیدرآباد سے کہ اچانک چلتے چلتے جھٹکے کھانے لگی اور رک گئی۔ زارا نے 400 اس قدر خاموشی اور اندھیرا دیکھ کر سائم سے پوچھا، سائم کیا ہوا؟ گاڑی کیوں رک گئی؟ یہاں تو اتنا اندھیرا ہے، اندھیرا اور سناٹا تو ہے، مگر باہر جا کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے۔ سائم مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز باہر نہ نکلیں گاڑی سے۔ کیا ہو گیا یار، باہر نہیں جاؤں گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا پرابلم ہے؟ گاڑی رک کیوں گئی؟ فیول تو ہے ابھی کافی۔ زارا کو خوفزدہ دیکھ کر سائم نے اس کو گاڑی میں ہی بیٹھنے کا کہا اور گاڑی سے باہر اتر کر سائم نے بونٹ کھولا۔ ریڈیٹر میں پانی ختم ہو گیا تھا، اس لیے انجن ہیٹ اپ ہو کر بند ہو گیا۔ زارا گاڑی میں سے پانی کی بوتل تو دینا۔ زارا اچھا رکے دیتی ہوں۔ زارا پچھلی سیٹ پر مڑ کر پانی کی بوتل اٹھانے لگی۔ بوتل اٹھا کر دیکھی تو وہ بالکل خالی تھی۔ زارا نے سائم کو پکارا، سائم بوتل تو مل گئی مگر وہ خالی ہے۔ زارا کی بات سن کر سائم کا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ خالی ہے؟ میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ بوتل بھی بڑھوا کر رکھوانا گاڑی میں۔ جی مجھے رکھوانا تو تھی مگر شاید میں بھول گئی۔ اف زارا اب کیا کروں میں، اس ویرانے میں یہاں تو کہیں پانی بھی نہیں ملے گا اور ریڈیٹر میں پانی ڈالے بغیر گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہوگی۔ کچھ دیر سائم خاموشی سے باہر کھڑا رہا۔ اچھا سنو، ایک کام کرتے ہیں، تم گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، کچھ بھی ہو گاڑی سے باہر نہیں آنا اور نہ ہی دروازے کھولنا، اوکے؟ جی۔ سائم مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو نہیں، بس میں جلدی پانی ڈھونڈ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سائم سامنے اندھیری پگ ڈنڈی پر چلتے چلتے غائب ہو گیا۔ خوف سے زارا کی جان نکل رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسی اندھیری پگ ڈنڈی پر سائم واپس آتا نظر آیا۔ سائم کو آتا دیکھ کر زارا کی جان میں جان آئی۔ کھولو۔ حریم نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ یار یہاں سے کچھ دور ایک قبرستان دیکھا ہے میں نے، گھر تو کوئی نظر نہیں آیا، قبرستان میں تو پانی ہوتا ہے، دونوں چلتے ہیں، تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ قبرستان کا سن کر زارا نے صاف منع کر دیا جانے سے۔ میں نہیں جاؤں گی، دیکھو یہاں اتنا سناٹا ہے، جاڑیاں ہیں، ہمیں 2 گھنٹے ہو گئے یہاں سے ایک گاڑی بھی نہیں گزری۔ اب کیا کریں، کوئی ڈکیت یا جنگلی جانور نکل آیا تو تم کیسے خود کو بچاؤ گی؟ میں بھی نہیں ہوں گا۔ بہت سمجھانے پر زارا مان گئی اور گاڑی کو اچھی طرح لاک کر کے سائم اور زارا اس اندھیری پگ ڈنڈی پر چل کر قبرستان کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کے 3 بجے کے وقت چاروں جانب پوری سرار خاموشی اور اندھیرا، ایک دم سے کتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ زارا نے سائم کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سائم جلدی سے پانی لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بس 2 منٹ، بوتل بڑھنے والی ہے، نل بہت ہلکا ہے، رکو بس، لو بڑھ گئی، آؤ چلے۔ سائم نے مڑ کر زارا کو کہا کہ اچانک اس کی نظر نل سے کچھ دور بائیں جانب گئی۔ رکو ذرا، کیا ہوا؟ 1 منٹ رکو، وہاں کچھ ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھا ہے، دیکھو روشنی بھی ہے پیلی سی، شاید آگ لگا رکھی ہے۔ چھوڑے سائم، واپس چلیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ منہ پر انگلی رکھ کر سائم نے کہا، بس تم خاموش رہنا۔ یہ کہہ کر سائم لمبے لمبے ڈگ بھرتا
उन लोगों के पास पहुंचा। ए सुनो, कोई जवाब नहीं आया। ए बात सुनो, बहरे हो क्या? साइम ने उनके बहुत करीब जाकर बोला। कहते साथ ही साइम की नजर सामने पड़ी तो देखा एक बरहना मुर्दा कब्र से बाहर पड़ा था और एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी उसके पेट को फाड़कर बोटियां नोच नोच कर सामने बैठे 2 आदमियों को खिला रहा था। सफेद रंगत वाले वो 2 आदमी जो ताजा खून से लुथरी हुई बोटी देखकर अजीब सी घुराहट के साथ उछल उछल कर मुंह से बोटी पकड़कर खा रहे थे। साइम भी उन अजीबो हलकत लोगों को देखकर दंग रह गया, जो आधा जिस्म डांपे सफेद रंगत के साथ मुंह पर राल टपकाते किसी वहशी दरिंदे की तरह ऐसे लपक लपक कर उस ताजा मुर्दे की बोटियां खा रहे थे कि जैसे दुनिया में इन खून में लुथरी बोटियों से ज्यादा कुछ लजीज नहीं। ये सब देखकर साइम को शदीद कराहत होने लगी और उसने मुंह पर हाथ रखकर कुछ दूर खौफजदा खड़ी जारा की जानिब मुड़कर देखा। साइम ने उसको वापस आने का इशारा किया और जैसे ही उन लोगों की जानिब घुमा, उसके बिल्कुल सामने वो दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। हुलिये से तो वो कोई पंडित नजर आता था। काला चोगा, बिखरे बाल और दाढ़ी अजीब सी, एक खट्टी सी बदबू उठ रही थी उसके वजूद से। साइम ने उस आदमी से दूर होते हुए कहा, कौन हो तुम और ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये मुर्दा क्यों निकाल कर खा रहे हो? उस आदमी ने साइम के बिल्कुल पास आकर उसके कान में धीमी आवाज में कहा, हमें ताजा मुर्दा चाहिए होता है, अब तुम हमारे हो। उस पंडित की बात सुनकर साइम के जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए और रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक सर्द लहर उठी। साइम ने उसको पीछे धकेला और वहां से वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर साइम ना तो वहां से हिल पाया और ना ही उस पंडित को खुद से दूर कर पाया। ये सब देखकर पंडित और उसके चेले जोर जोर से हंसने लगे। हा हा, कहा था ना अब तुम हमारे हो। और उसने अपनी सुर्ख होती आंखें साइम की आंखों में गाड़ कर आगे बढ़ते हुए एक नजर पीछे कुछ फासले पर खड़ी हरीम को देखा और अपनी उन वैश्यों को देखकर हश का इशारा किया। दोनों अजीबो हलकत लोग किसी कुत्ते की तरह दोनों हाथों और पाँव से दौड़ते हुए जारा की जानिब जाने लगे। उनकी लंबी राल टपकाती जुबानें गज भर लंबी जमीन पर साथ घसीटती जाती थीं। उनको अपनी जानी बातें देखकर जारा ने जोर से एक चीख मारी और होशो खर्द से बेगाना होकर नीचे गिर पड़ी। अब तो और भी आसान था सब काम। पंडित ने अपनी मकरू मुस्कुराहट से साइम की तरफ देखा। साइम की आंख से बेबसी का आंसू टपका। उस पंडित ने तभी आगे बढ़कर अपने दांत साइम की गर्दन में गाड़ दिए। साइम हिल भी नहीं सकता था। बेबसी और लाचारगी से अपनी मौत को खुद पर हावी होते देखने लगा। जारा को अच्छी तरह सूंघने के बाद दोनों वैश्य उसके पेट पर हाथ रखकर अपने आका के दूसरे हुक्म के इंतजार में बैठकर ऊंची आवाज में कुत्ते की तरह रेंकने लगे। साइम के बेदम वजूद के जमीन पर गिरते ही पंडित ने अपने मुंह पर लगा गर्म खून हाथ से पूछा और हश की आवाज निकाली। आवाज कानों में पड़ते ही दोनों वैश्य लपक कर साइम के ऊपर चढ़कर बैठ गए और उसकी आंखें अपने लंबे नाखूनों वाली उंगलियों से नोचने लगे। आंखों के बाद किसी से को डेरना था, ये तो बस वो पंडित ही जानता था। वो खूब सैर होकर जमीन पर आसन जमाकर बैठा था। रात अपनी स्याही और राजों के साथ मजीद गहरी होती जा रही थी। मौत का सुनाटा हर सू छा गया था। सुबह का रोशन जिंदगी से भरपूर उजाला हर तरफ फैल गया था। बड़ी नेमत है ये रोशनी भी। सारी स्याही सारे बुरे काम अपनी रोशनी से मिटा देती है। अहमद अली साहब एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। अहमद साहब ने मुलाजमत के बाद सुकून की खातिर इस पुरफजा मुकाम पर रहाइश को तरजीह दी और यहाँ मुंतकिल हो गए। नमाज फजर की अदायगी के बाद वो अपने जवां साल बेटे की कब्र पर फातह खानी करने कब्रिस्तान पहुंचे तो वहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी थी। पीली रंगत वाली लड़की। उस लड़की के मुंह से कुछ खून निकलकर मिट्टी पर भी जमा हुआ था। ये सब देखकर तो अहमद साहब परेशान ही हो गए कि अब क्या करें। पानी की बोतल जो वो कब्र पर पानी छिड़कने के लिए साथ लाए थे, उससे उन्होंने उस लड़की के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उठो बेटी, कौन हो तुम? आंखें खोलो। जारा ने पानी के छींटे मुंह पर पड़ते ही कुछ आंखें खोली और सामने अहमद साहब को देखकर सहम गई और सरसीमा नजरों से उनको देखने लगी। अहमद साहब कुछ समझ नहीं सके और उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? कब से यहाँ पड़ी हो? उनकी बात सुनकर जारा ने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया और जोर जोर से रोने लगी। साइम, साइम, उन्हें ताज़ा मुर्दा चाहिए होता है। साइम, दर्द से फटी आवाज में साइम को पुकारते हुए रोने लगी। अहमद साहिब ने उसकी इस हालत को देखते उस लड़की को घर ले जाने का फैसला किया। उठो बेटी, मेरे साथ मेरे घर चलो। अहमद साहिब ने उसका हाथ पकड़कर उसको उठाते हुए कहा, हटो हटो, छोड़ो। अहमद साहिब ने उसकी हालत के पेश नजर उसको कहा, अच्छा बेटी उठो, आओ साइम के पास चलें, मैं तुम्हें साइम के पास ले चलता हूँ। अहमद साहिब की बात सुनकर जारा एकदम चुप हो गई और बच्चों की तरह हैरान होकर बोली, साइम के पास, और उनका हाथ पकड़कर बोली,
चलें अब्बू, जल्दी चलें, साइम के पास जाना है। ज़ारा की बात सुनकर अहमद साहब का दिल उसके गम से बढ़ गया। पता नहीं क्या गुजरी थी इस लड़की पर, और क्या हुआ था उस लड़के साइम के साथ जो ये इस कदर बिलक कर रोती है और मुअत्तल हवासों से साइम को पुकारती है। चले ना अब्बू, जल्दी चलें, साइम बुला रहा है ना। हाँ बेटा आओ चलो, साइम बुला रहा है। बेरब्त गुफ्तगू, बेवजह हंसना, तमाम रास्ते हरीम की हरकतें देखकर अहमद साहब को यकीन हो गया कि इस लड़की की दिमागी हालत अब ठीक नहीं रही। चलते चलते कभी नीचे बैठ जाती और कभी रोते हुए कहती, अब्बू मैं थक गई, गोदी में लें। बहुत मुश्किल से अहमद साहब उसको घर लाने में कामयाब हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। काफी देर दस्तक देने के बाद घर के अंदर से एक नस्वानी आवाज आई। जी 1 मिनट आती हूँ। दरवाजा खोलते ही जब सामने नजर उठी, दरवाजे के ऐन सामने एक जर्द रंगत वाली लड़की खड़ी थी। मट्टी से अटे कपड़े, बिखरे बाल, मगर मुस्कुराहट, गम और थकन के तासुर वाली लड़की। शगुफ्ता अली ने सवालिया नजरों से अहमद साहिब को देखा। शगुफ्ता रास्ता छोड़ो। शगुफ्ता बेगम अभी तक बीच दरवाजे में जो खड़ी थी, ओहो, ये कहते हुए दरवाजे के बीच से हट गई। ये कौन है? अहमद साहिब, थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले तुम इस बच्ची को मुंह हाथ धुलवाकर कपड़े बदलवा दो, फिर कुछ खिला पिलाकर इसको सहलाना भी होगा, फिर बाद में बैठकर आराम से सारी तफसील बताता हूँ। ज़ारा तब तक एक सोफे पर बैठकर अपने सर को दोनों हाथों से खुजाने में मशगूल थी। शगुफ्ता ने उनकी सारी बात सुनकर ज़ारा को देखा। खुजली हो रही है बेटा सर में? उन्होंने शफकत से पूछा। अम्मी बहुत खुजली हो रही है। उसके मुंह से अम्मी सुनकर शगुफ्ता अली का रंग जर्द हो गया। क्या ना याद आया था उनको उस लड़की के मुंह से अम्मी सुनकर। आओ बेटा, हम ऊपर कमरे में चलते हैं, फिर खाना खाएंगे कमरे में। अम्मी मेरे कमरे में आए। चलें। ज़ारा ने आगे बढ़कर मुहब्बत से शगुफ्ता बेगम का हाथ पकड़ लिया। ज़ारा को सहारा देकर ऊपर कमरे तक लाने में ही शगुफ्ता बेगम की हालत गैर हो गई। उन्होंने बेड पर बिठाकर कुछ देर रुकने का कहा और गहरी गहरी सांस लेने लगी। कुछ देर बैठकर उन्होंने ज़ारा को एक सूट दिया कि पहन लो, और कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद कमरे में दाखिल हुई तो ज़ारा उल्टी कमीज पहनकर बैठी थी। ये देखकर शगुफ्ता बेगम को उस पर बेहद तरस आ गया। अच्छा, मैं अपनी बेटी को ठीक से कमीज पहना देती हूँ। कमीज ठीक करते हुए उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनके हाथ पर कुछ चिपचिपा सा सियाल लगा है। हाथ देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा हाथ खून में तर था और ज़ारा के पेट की तरफ कमीज पर भी काफी खून लगा था। फौरी तौर पर उन्होंने ज़ारा को उल्टा करके उसके पेट पर देखा तो बेख्तियार उनके मुंह से चीख निकल गई। आख, ये क्या है? ऐसा लगता था कि जैसे ज़ारा के पेट को चाक करके फिर से सिया गया है। पेट के ताज़ा जख्म में से खून रिस रहा था। शगुफ्ता बेगम ने फौरी तौर पर खून साफ करके मरहम लगाया और अहमद साहब के पास नीचे जाकर सारा मामला पूछने का फैसला किया। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आए और अहमद साहब को ज़ारा के जख्म के बारे में बताकर पूछा। अहमद साहब, कौन है ये लड़की? इसकी इस कदर खराब हालत क्यों है? आपको ये मिली कहाँ से? कब्रिस्तान से मिली है, जहाँ समीर दफन है। या मेरे अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये मुकम्मल कहानी हमारे नए चैनल रियल स्टोरी टीवी पर अपलोड की जाएगी। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। हमारे नए चैनल रियल स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस चैनल पर आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।